वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम गॉस लॉ क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज गॉस लॉ? लुक एट हियर, दिस इज ए क्लोज्ड surface in which q1 q2 and qn n charges are situated। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसमें Q1, Q2 और Q1 चार्ज मौजूद है। ठीक है, अब इस क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो लिंक करेगा या इससे निकलेगा, तो उसकी अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हाउ विल यू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस? तो इस फ्लक्स को जानने के लिए गॉस ने जो है एक बहुत ही सिंपल रूल दिया, और वो रूल क्या कहता है कि आप इस जो क्लोज्ड सरफेस है इसके अंदर जितने भी चार्ज है उनका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। ठीक है, एल्जेब्रिक सम करने के बाद उसको जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो फिर अपने पास में ये फ्लक्स आ जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन थी, और ये जो है वो गॉस लॉ है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो है यदि सिंगल चार्ज ही मौजूद हो इसके अंदर, तब हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो फिर सिंगल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। चलिए, तो फिर ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपकी यहां से बन जाती है। तो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक, हाउ विल यू स्टेट गॉस लॉ? देखिए, according to this law, the total flux linked with a closed surface is 1 upon epsilon naught times of the algebraic sum of the charges enclosed by the closed surface। जो इस क्लोज्ड सरफेस में चार्ज होता है उसके एल्जेब्रिक सम का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो क्लियर? तो इस तरीके से हम एक सिंपल सी जो है बात है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है उसका एल्जेब्रिक सम कर लीजिए, और उसको कितने से डिवाइड कर दीजिए, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तब इस क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes through this surface, we can easily find out। Clear? So this is a statement of Gauss law। Now, but for single charge, we can say that phi equal q upon epsilon naught for single charge। But हम यहां एक बात ही कहने जा रहे हैं कि ये कैसे प्रूव करेंगे कि जो है phi जो होता है वो q upon epsilon naught होता है। Means what is proof of Gauss law? तो Gauss law को प्रूव करने के लिए we consider an imaginary surface of spherical surface of radius r। वैसे तो हम इसके लिए कोई भी सरफेस जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। द सरफेस कैन बी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कैसे भी जो है सरफेस जो है हम ले सकते हैं। ये तो ये कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है, but for convenience we take spherical surface। So this is a spherical surface of radius r, at center O the charge q is situated। We take a point P at this surface at where the small area element is ds, but we consider the electric field intensity at P is E। Then we can find out electric flux through this surface by using definition। So first we consider a spherical surface having radius r। Clear? R radius। We take a small area element ds at surface point P having electric field intensity कितनी E। Clear? Now the outgoing flux through small area vector ds, by using definition you can write as d phi equal E log ds, but you have to find out total flux
total flux passes through this spherical surface. So you have to integrate it. हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो phi इक्वल तो ऑन phi इक्वल इंटीग्रेशन E डॉट ds. Phi इक्वल EVS cos theta. Clear? But here for this point, the direction of electric field intensity is radially outwards, and the direction of area vector will be along radially outwards. So we can say that here E parallel to ds and theta equal 0 degree. So phi equal EVS cos 0, phi equal cos 0 1, phi equal EDS. This is equation second. But we know that the electric field intensity due to a point charge at any point we can write as E equal Q upon 4 pi epsilon naught r square. Clear? So we can value of VE at here. So by using equation second and third, phi equal closed surface integration Q upon 4 pi epsilon r square into ds. We can put value of E here, Q upon 4 pi epsilon r square, or this is equal to ds. Okay. So there is what will be next step. आपको ये नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद में जो है यहां पर इसको यहां रिमूव कर देता हूं. So we can write as phi equal, there is what quantities are constant here, Q upon 4 pi epsilon r square, Q upon 4 pi epsilon naught r square integration of ds. But total surface area of this sphere, we can write phi equal Q upon 4 pi epsilon naught r square into 4 pi r square, total surface area of sphere. So we can write as integration of ds equal 4 pi r square. Here 4 pi is cancelled out with 4 pi, r square is cancelled out by I square. So what is the result? Phi equal Q upon epsilon naught. This is proof of Gauss law. This is equation 4. So here important term is this, d phi equal E dot ds. Flux passes through this area element ds. Next you can write theta equal 0 degree. So phi equal E ds, but value of E you can write Q upon 4 pi epsilon r square. So ये स्टेप आपके पास आ जाएगी, लेकिन इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगी. इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह जाएगा, ds, और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोज सरफेस में जो चार्ज है, उस चार्ज को यदि एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की नंबर आ जाती है, मींस फ्लक्स आ जाता है. क्लियर? तो अब आप यहां पर किसको नोट कर सकते हैं. Now we take some important facts about Gauss law. Number first, Gauss law is true for any closed surface, no matter what its shape and size. Gauss law जो है वो किसी भी तरह की सरफेस के लिए जो है वो लागू हो सकता है. उसमें किसी जो इनक्लोज सरफेस होती है उसकी शेप एंड साइज कैसी भी हो, सभी के लिए जो है वो गॉस लॉ एप्लीकेबल है. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड, इन गॉस लॉ द फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ चार्जेस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. क्या मतलब? सपोज कीजिए कि आपके पास में ये कोई क्लोज सरफेस है, ये चार्ज Q1, Q2 एंड Qn चार्ज मौजूद है. Clear? If we change position of these charges, then the outgoing flux phi equal summation Q upon epsilon naught. Summation Q पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या?
नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब समेशन क्यू पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही हुआ। इसका मतलब यदि हम चार्ज की पोजीशन चेंज कर दें तो जाने वाले फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब रही बात ये नेक्स्ट कि सपोज कीजिए कि हम इन चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं एक यहाँ इन सबको एक दूसरी जगह जो है लेके आऊं, तो इस केस में समेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मींस वी कैन से दैट आउटगोइंग फ्लक्स from any closed surface does not depend upon the distribution of charges and the position of charges, उन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? नो पॉइंट। नंबर थर्ड, Gauss law is based on the universe square law, inverse square dependence on distance contained in the Coulomb's law। क्या मतलब निकला कि ये जो Coulomb's law है ये किस पर डिपेंड करता है? ये जो है बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है? ये इनवर्स लॉ, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जैसे कूलम्ब्स लॉ F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो कूलम्ब्स लॉ जो है या कोई फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड कर रहा है। तो गॉस लॉ इन ऐसे फील्ड्स के लिए वैलिड होगा। नंबर फोर्थ, इफ देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट और हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड enclosed surface, then the linked flux with closed surface will be zero। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में कोई क्लोज सरफेस है, इसमें कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इन दिस enclosed surface, so there will be summation q 0 upon epsilon naught, it means flux will be 0। so we can say that if there is no charge present inside this surface, then there will be flux 0। in another case, if we take electric dipole, suppose this is minus q charge, this is plus q charge, this is electric dipole, in this situation phi equal summation q upon epsilon naught, means minus q plus q upon epsilon naught, so 0 upon epsilon naught, this is equal to 0। so we can say that यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या फिर उसमें कोई चार्ज मौजूद नहीं हो तो ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गॉस लॉ के जो है विद रेस्पेक्ट। अब हम एक बार फिर से हम इनको रिपीट कर लें, कौन कौन से जो है फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट क्या कहता है कि गॉस लॉ जो है वो जो है कैसे भी क्लोज सरफेस हो उसके लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर? नंबर 2 जो है डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज की पोजीशन पे जो है वो जाने वाला फ्लक्स या निकलने वाला फ्लक्स या लिंक्ड फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। नंबर 3 ये ऐसे फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है गॉस लॉ जो फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। नंबर 4 किसी भी यदि इनक्लोज सरफेस में कोई चार्ज नहीं हो या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मौजूद हो तो ऐसी सिचुएशन में उसमें जो फ्लक्स होगा उससे रिलेटेड वो क्या होगा? वो 0 होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। और इसके जस्ट बाद हम आगे जो है वो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे कि इसके यूज क्या है। क्लियर? नेक्स्ट we take some examples which are based on Gauss law। so example is 2.6 on page 32। क्या है इस एग्जाम्पल में? देखिए, there is a spherical surface of radius r in which charge q is exist। so given q equal 7.6 microcoulomb, 7.6 into 10 to power minus coulomb। Clear? And radius of this sphere is 0.03 meter। But you have to find out flux passing through this spherical surface if the radius of the sphere becomes double। कहने का मतलब यदि इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए तब इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा।
तो एक बार मैं फिर बता रहा हूं, स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस r है, जिसमें चार्ज q एग्जिस्ट करता है, और यदि हम इसकी रेडियस को डबल कर दें तो कितना फ्लक्स पास होगा। लेकिन हम जानते हैं क्या, बाय यूजिंग गॉस लॉ, फ्लक्स फाई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स does not depend upon the shape and size of the spherical surface। स्फेरिकल सरफेस की शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हमने पढ़ा भी है। सो वी कैन राइट फाई इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज चार्ज इनसाइड spherical surface? q equals 7.6 into 10 to the power minus 6। Value of epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12 है। तो this is cancel out by 10 to the power minus 12। तो 10 to the power 6 plus जब 10 to the power minus 12 ऊपर जाएंगे तो 7.60 8.85 decimal is cancel out। If we divide 760 by 885 then we find 0.86, but we have to write it in scientific notation। So we shift 110 here, then it becomes 8.6 into 10 to the power 5 voltmeter। इस तरीके से हम इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2.7 ऑन पेज 33 क्या दे रखा है, यहां एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है और जिसके सेंटर पे चार्ज q एग्जिस्ट करता है। अब हमें ये निकालना है कि इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन से कितना फ्लक्स निकलेगा। लेकिन गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें चार्ज को इंक्लोज करना पड़ता है किसी बाउंडेड सरफेस से। लेकिन अब हम इसे बाउंड कैसे करें, तो बाय सिमेट्री। जैसे ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है तो ऐसी ही हेमिस्फेरिकल सरफेस से इसको हम बाउंड कर देंगे, तो देन इट बिकम्स टोटल स्फीयर। देन क्या क्या गिवन है इसके अंदर, देखिए चार्ज क्यू गिवन है और निकालना है आपको किसी हेमिस्फेरिकल पोर्शन से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फिर हमने इसको बाउंड किया किससे, एक और हेमिस्फेरिकल सरफेस से, तो ये टोटल स्फीयर बन गया। अब चार्ज क्यू बाउंडेड है और हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो टू इनक्लोज चार्ज क्यू वी कंसीडर ए हेमिस्फेरिकल surface due to symmetry and the charge will be enclosed in a complete spherical surface। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं हेमिस्फेरिकल सरफेस, इस प्रकार से कंप्लीट जो है स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी। तो अब बाय यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स पासेस थ्रू कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस। कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस कहते हैं या फिर हम कहते हैं टू हेमिस्फेरिकल सरफेस, क्योंकि दो हेमिस्फेरिकल सरफेस एक कंप्लीट को बनाती हैं। तो दो चीज कह सकते हैं कि कंप्लीट हेमिस्फेरिकल सरफेस, कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टू हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो फिर ये चीज हमारे पास में फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको सिर्फ निकालना है हेमिस्फेरिकल के लिए। तो फिर दो हेमिस्फेरिकल सरफेस से इतना फ्लक्स निकलता है, तो फिर सिंगल फ्लक्स पासेस थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो फिर ये जो टू है ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, दिस टू विल बी शिफ्ट हियर, देन फाई डैश इक्वल क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, टू हेमिस्फेरिकल सरफेस कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वन इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फाई डैश। क्लियर। इस तरीके से इन दोनों एग्जांपल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जांपल 2.8 पेज नंबर 33। इस एग्जांपल में क्या दिया गया है कि ये ए साइड का एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, और ये क्यूब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एग्जिस्ट करता है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब आपको इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल E नॉट एक्स आई कैप, देखिए x डायरेक्शन में है, और E नॉट जो है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.5 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, एंड साइड ऑफ क्यूब A इक्वल 1 सेंटीमीटर इन ऐसा यूनिट 1 into 10⁻² मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि क्यूब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू इतनी है और उसकी साइड A है। निकालना क्या है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब फाइव कैलकुलेट करना है। सेकंड, चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यूब, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो ये हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें देखें कि फॉर्मूला होता है हमारे पास में फ्लक्स फाई इक्वल E डॉट ds, E डॉट ds डी फाई इक्वल, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई इक्वल E डॉट ds, क्लियर। तो फिर यहां पर फाई इक्वल E डॉट s, लेकिन यहां इस क्यूब की जो है, क्यूब जो है वो कितने प्लेन से मिलकर के बना हुआ है, तो यहां क्यूब जो है वो 6 प्लेन से मिलकर के बना हुआ है, A B E F और O C D G और B C D E और O A F G, क्लियर, और O A B C और D E F G। इस तरीके से ये 6 प्लेन जो है वो आपके पास में इस क्यूब के अंदर जो है स्क्वायर एज ए स्क्वायर काम कर रहे हैं। तो इन सभी से निकलने वाला फ्लक्स हम कैसे निकालें, E डॉट S पहले वाले इस प्लेन से A B E F प्लस फिर ठीक इसके जस्ट इन फ्रंट कितना हो जाएगा O C D G प्लस फिर अगले वाला B C D E फिर नेक्स्ट O A F G फिर E डॉट S O A B C फिर लास्ट D E F G 6 प्लेन हो गए। लेकिन एक बात यहां से हम देखें वो क्या कि यहां पर मैं ये जो एरिया है, इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग होता है। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स होगी, तो ऐसे ही इसकी जो होगी वो बिल्कुल इन फ्रंट होगी, उसकी बैकवर्ड होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया की वो बिल्कुल इस साइड में होगी। तो फिर परपेंडिकुलर कौन कौन से E और S हुए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही काम कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए E की डायरेक्शन और S की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। ऐसे ही इसके लिए भी E की डायरेक्शन और S की डायरेक्शन वो भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कितने प्लेन के लिए होगा, ये 4 प्लेन के लिए परपेंडिकुलर होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं, देखिए E डॉट S B C D E, E डॉट S O A F G, E डॉट S O A B C और E डॉट S D E F G, ये बराबर 0 होगा, इक्वल 0। क्यों? क्योंकि E परपेंडिकुलर है किसके, S के। तो यहाँ 4 जो प्लेन हैं वो 4 स्क्वायर हैं, उनका जो एरिया वेक्टर है वो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर होगा। लेकिन 2 ऐसे प्लेन होंगे कि जिनके लिए जो है वो पैरेलल होगा। कौन सी? एक तो ये वाली साइड A B E F, तो A B E F इसके लिए जो है वो हमारे पास में ऐसा कैसा जो है वो रहेगा A E डॉट S A B E F, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, और एक ये E डॉट S O C D G पहला और दूसरा। बाकी जहां अंडरलाइन कर रखे हैं वो जितने भी स्क्वायर का जो एरिया है वो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने से ये स्टेप 0 हो जाएगी, 1 2 3 और 4। तो बच कितने गए, खाली 2 स्टेप बच गई। तो 2 स्टेप हमने यहाँ पर ये लिख दी, बाकी सब 0 हो गई। लेकिन अब आगे आती है मतलब हमारे पास E की वैल्यू पुट कर देंगे। E की वैल्यू कितनी दे रखी है, E नोट एक्स आई का रख दिया। एरिया स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर, लेकिन यहाँ इस प्लेन के लिए A स्क्वायर आई का, क्योंकि इसका नॉर्मल आगे की तरफ है और एक्स एक्स के अलोंग डायरेक्शन आई का है। तो फिर ये हमारे पास S A स्क्वायर आई का है। ऐसे ही इस दूसरे वाले के लिए जो है E की वैल्यू पुट कर दें, लेकिन S
यहाँ इसका नॉर्मल इधर है, इसलिए इसकी डायरेक्शन अलोंग माइनस आई कैप होगी। तो फिर उस केस में ई की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, एस की वैल्यू माइनस आई कैप ए स्क्वायर कर दी। क्लियर? अब यहां से हम ये देखेंगे कि ये एक्स की वैल्यू इस प्लेन के लिए, ये प्लेन यहाँ ये स्क्वायर यहाँ से ए डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है ओरिजिन से। इसका मतलब एक्स की जगह कितना पुट कर देंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे ए, आई डॉट आई 1 और इंटू ए स्क्वायर माइनस ये वाला प्लेन ओसीडीजी, ओसीडीजी ये ओरिजिन पर ही मौजूद है, इसलिए एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो ओसीडीजी के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये 0, फिर ये स्टेप तो आपके पास में जो है कंप्लीट 0 होगी। तो ये ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब, तो ई नॉट ए क्यूब आ जाएगा। ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, ये ई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे और ए साइड दे रखी है स्क्वायर की 1 × 10⁻⁻² का होल क्यूब। तो फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 × 2 = 6 -6 में से 5 गया -1 रह गया, 2.5 × 10⁻⁻1 और अपॉन 10 करेंगे तो 0.25, ये हमारे पास में फ्लक्स आ जाएगा। अब रही बात ये कि इसमें कितना चार्ज बाउंड होगा, तो फिर बाय यूजिंग गॉस लॉ phi = q upon एप्सिलॉन नॉट, तो फिर क्यों निकालना है, तो इक्वल एप्सिलॉन नॉट इनटू में phi क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और phi की वैल्यू आपने निकाल ली 0.25, तो phi की जगह 0.25 पुट कर दें और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कूलम चार्ज आ आएगा। इस तरीके से ये एग्जांपल 2.8 हो गया, जिसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक उसके अंदर फ्लक्स कितना गुजरेगा, कितना फ्लक्स पास होगा, दूसरा उसके अंदर कितना चार्ज बाउंड होगा। तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि अंडरलाइन जो लगी हुई जो स्टेप्स हैं वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए ई डॉट एस, ई और एस के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो ई एस cos 90 0 हो जाएगा। तो ये सभी cos 90 की वजह से क्या हो जाएंगे 0, तो सिर्फ ये दो स्टेप बचेंगी और इन दोनों से निकलने वाला फ्लक्स हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है 2.9 पेज नंबर 33। क्या दे रखा है इसमें, एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है और इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो एक पहले वाले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ठीक इसके जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये दो सिचुएशन हमें दे रखी हैं। पूछा ये गया है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, लेकिन हम इस हेमिस्फेरिकल सरफेस को दो जो है वो सरफेस में कंसीडर कर सकते हैं, एक तो कैसी सर्कुलर और एक कैसी एक कर्व्ड। तो फिर हम ये कह सकते हैं निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई वो कर्व्ड सरफेस और सर्कुलर सरफेस के फ्लक्स के सम के इक्वल होगा। क्लियर? और यदि हम गॉस लॉ लगाएं तब इसके अंदर कितना चार्ज कंटेंट है उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, लेकिन आपको यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल 0 हो जाएगा, तो फाई सी प्लस फाई सी आई इक्वल क्या लिख सकते हैं 0, और कर्व्ड सरफेस से निकालना है तो फाई सी इक्वल क्या हो जाएगा माइनस फाई सी आई। क्लियर? अब यदि फाई सी आई सर्कुलर सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स पता लग जाए तो हमें कर्व्ड सरफेस का पता लग जाएगा, लेकिन हम जानते हैं फाई सी आई निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये डी एस ले लें तो इस डी एस की डायरेक्शन क्या होगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है इस डायरेक्शन में ई, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो फिर यहां से फाई सी आई की वैल्यू क्या होगी 0, यहां लिख सकते हैं कि ई जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, डीएस के। देखिए ई ऐसे काम कर रहा है, डीएस ऐसे काम कर रहा है, तो फिर फाई सी आई की वैल्यू 0 हो गई। तो फिर ये वैल्यू हम उठा करके यहां रख दें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो फाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो फिर इस कर्व्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो गया 0। दूसरे वाले कंडीशन में हम देखें उसमें भी टोटल जो फ्लक्स होगा वही कर्व्ड सरफेस और यही सर्कुलर सरफेस से जो है दोनों से फ्लक्स निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? फाई सी प्लस फाई सी आई, अगेन आपके पास 0 आएगी, और फाई सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं कर्व्ड सरफेस से तो माइनस फाई सी आई करेंगे, लेकिन फाई सी आई निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए ई ऊपर काम कर रहा है, डीएस नीचे काम कर रहा है, दोनों के बीच एंगल कितने का होगा 180 डिग्री। कितने का एंगल होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री होने से ये स्टेप होगा माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, माइनस आ गया। लेकिन ई बाहर निकालें इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करें तो नीचे सर्कुलर पोर्शन है और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो फिर हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, इस पूरी स्टेप की जगह इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की जगह लिख दिया पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस पाई आर स्क्वायर ई। लेकिन अब सेकंड इक्वेशन को उठा के फर्स्ट में रख दें तो कर्व्ड सरफेस फाई सी की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फाई सी इक्वल पाई आर स्क्वायर ई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस केस में तो कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा और इस केस में कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स गुजरेगा, और वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल ई। तो अब इनको आप जो है वो नोट कर सकते हो और इनको रिपीट करके एक बार फिर से जो है
इनमें से इनको क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से आपके गॉस लॉ पर जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर?